Hi guys, good morning. Today is 5th of July 2017 and people say that why do you analyze Nifty every day? You can do something else also, but I believe I feel, that is how I begin my day. That is how I analyze my trades. मुझे सबसे पहले निफ्टी की डायरेक्शन पता होनी ज़रूरी है बिकॉज आई बिलीव मार्केट रिवॉल्व्स अराउंड निफ्टी राइट. अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, अगर निफ्टी नीचे जाती है तो स्टॉक्स नीचे जाते हैं. सो आई रियली बिलीव एंड आई बिलीव सिंस आई हैव मेड अ यूट्यूब चैनल I need to impart what I feel about the market. Like I feel that Nifty is very, very important for us to understand those who are in the market, and with that conviction, I tell you every day. And some new aspect I bring about it, so, I mean, I would rather say it this way कि आप choice कर सकते हैं. You don't feel like watching my videos. That choice you can make. But I definitely want to analyze Nifty because see, निफ्टी अगर आपको समझ में आएगी ना तो आपको सारे स्टॉक समझ में आएंगे. फिर आप गलत डायरेक्शन में कभी पोजीशन नहीं लोगे. अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म ट्रेडर हो तो आपकी डायरेक्शन कभी गलत नहीं होगी. नाउ कल का आपको मेरा वीडियो याद होगा. मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि मुझे एक बहुत कन्विक्शन नहीं आ रहा है निफ्टी की डायरेक्शन में, क्योंकि निफ्टी जो है एक पॉजिटिव स्टांस के साथ ओपन हुई है, बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत एग्रेसिवली ऊपर जाएगी. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वॉच माई वीडियोज़ एवरी डे, सो यू कैन रिकलेक्ट माई स्टेटमेंट. एंड आज भी वही सिचुएशन है, क्योंकि मुझे जो कल मेरे जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स थे दे वर इंडिकेटिंग दैट निफ्टी हैज़ टू गो अप. बट लुकिंग इन टू दिस स्पेस जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, वहाँ देख के मुझे लग रहा था ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, राइट. और आज मैंने ये चैनल बना रखी है निफ्टी इसको बार कितने समय इसने देखिए कोशिश की है. जब से ये ओपन हुई है, ये ओपन होके नीचे आ गई, फिर ऊपर जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, मतलब 2 घंटे इसने इसी रेंज को इस बाउंड्री को क्रॉस करने में लगा दिए, बट इट्स नॉट बीइंग एबल टू क्रॉस, right? So what I can see is the lack of momentum that exists right now, right? And that lack of momentum is basically maybe it's waiting for some kind of a direction or some kind of a news or some kind of, I think geopolitical tension is so high that Nifty doesn't want to take a stance. Had everything would have been normal, Nifty must have gone up from here. But right now it doesn't have that, right? But I want to show you some of the stocks that we identified. We identified it yesterday. So one of the stock that we identified was Mindtree. ये रन अप आज इसने लिया है, ओपन अप किया इसने 535 पे और ये ऊपर लगा के आ चुका है, 545 भी लगा के आ चुका है. दिस वॉज इट्स रन अप. और ये नहीं था कि गैप अप ओपन हुआ है, ये जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से इसने 10 पॉइंट का रन अप आपको पूरा दिया है. So this was one stock that we identified. So usually what happens, all the members in the webinar and including me, we filter out stocks and we come down to 1 or 2 stocks to trade in the next day. And when we see actually what we thought about, did it happen like that or not? So Mindtree was one stock. Then we have Tata LXI on our radar. You can see how it has gone up. Even Tata LXI has gone up. Started from 1678 and it has gone up to 1705. 68 मतलब let's say we take roughly about 70 ले लेते हैं. 70 से लेके ये ऊपर 30-35 पॉइंट्स इसने आज आपको दे दिए हैं. Then we of course has McDowell's on our radar. I discussed it yesterday also. Again also it is giving a huge run up. ठीक है, this is still giving a huge run up. And of course we have SR Transportation and Finance, which has again given a very, very good run up. Right now, see, many of the members were asking me ki, should we enter the trade now? So what I want to tell you in today's video ki, please, you have to mind your entry matters a lot. Because अगर आप गलत जगह पे एंट्री करोगे ना तो वही होगा जो हर एक के साथ होता है कि immediately after that the stock will take the turn, right? अगर आपने बाय का ऑर्डर डाला है तो वहाँ से वो नीचे की तरफ चलने लगेगा, और आपने सेल करा है तो वहाँ से ऊपर की तरफ चलने लगेगा. सो एंट्री मैटर्स अ लॉट एंड एंट्री डिपेंड्स अपॉन द ब्रेकआउट.
अगर आपने स्टॉक को ब्रेकआउट पे फाइंड आउट कर लिया है, यू कॉट इट एट ब्रेकआउट, देन यू डोंट नीड टू वरी. बट अगर आप उसके बीच when it is moving in a certain direction and then you catch it, then there is more probability, ज़्यादा probability होगी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बिकॉज आपने बाय का ट्रेड लिया है, वो नीचे की तरफ चल देगा, और अगर आपने नीचे का ट्रेड लिया है, सेल का ट्रेड लिया है, वो बाय की डायरेक्शन में चल देगा. तो एक दिन पहले आपकी एनालिसिस एक दिन पहले होनी चाहिए, और फिर आप यू कंबाइन द स्टांस ऑफ निफ्टी को कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में चलना है, उसको आपको कंबाइन करना है विद योर स्टॉक सिलेक्शन, और उसके साथ उसको आपको मर्ज करके फिर अपना ट्रेड लेना है. ठीक है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि एंट्री रियली मैटर्स लॉट. जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऐसा ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में हमने एंट्री ली थी, कहाँ पे और कहाँ से हमको इसका मोमेंटम मिला था. हमने एंट्री इस जगह पे ली थी, हमने एंट्री ली थी 10:30 के आसपास, एंड 10:45 से इसमें मोमेंटम आया था, राइट. तो अगर किसी ने इसको यहाँ पे ले लिया होता, सपोज 1027 पे ले लिया होता, तो उसका इमीडिएटली जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया होता. अगर उसने सेल बाय का ट्रेड लिया होता, तो इमीडिएटली उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता. सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ आवर एंट्री. एंट्री मैटर्स अ लॉट. सो यू हैव टू, और एंट्री कैसे आप डिसाइड करोगे, किस जगह से आप डिसाइड करोगे? एंट्री हमेशा मतलब ग्राफ के ट्रेंड से डिसाइड करोगे. फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द ट्रेंड फ्रॉम वन डे ग्राफ, वन डे. सेकेंड यू विल फाइंड आउट द एंट्री फ्रॉम 15 मिनट्स, राइट. दैट इज हाउ यू विल डिसाइड अबाउट योर करेक्ट एंट्री. अगर आप एंट्री इस जगह पे करोगे, डेफिनेटली योर स्टॉप लॉस विल बी हिट एंड यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट, राइट. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ डे बिफोर आप अपना एनालिसिस करिए और उसको तैयार रखिए. आज मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैंने आपको काफ़ी दिन पहले एक ल्यूपिन दिया था, राइट. ल्यूपिन दिया था. आज ल्यूपिन तब से अभी तक नेगेटिव के ट्रेड में ही चला जा रहा है. आज अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट ever since I have talked about it, like I talked about it somewhere here, 1100 something पे मैंने इसकी बात की थी, वहाँ से 1136 या ऐसी कुछ था, इस जगह से ये नीचे ही चला जा रहा है, राइट. एंड अब इस समय राइट अबाउट 15-20 मिनट्स बैक और हाफ एन आवर बैक इसमें थोड़ी सा पुल बैक आया है. तो ये पुल बैक ये दिस इज कॉल्ड बॉटम फिशिंग. लाइक व्हेन यू फील कि इतना मार्केट नीचे गिरता गिरता आ गया, अब और कितना चलेगा, चलो वैल्यूएशंस आर गुड, बाय. बट यू डोंट लुक इन टू द टेक्निकल रिवर्सल ऑफ द स्टॉक. जब रिवर्सल होगा उस समय आपको लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से रिवर्सल इसमें कब होगा, जब ये कैंडल बिलो 10 मूविंग, वन डे में अबव 10 मूविंग एवरेज चली जाएगी. ठीक है. अभी मेरे हिसाब से मैं इसमें एंट्री नहीं लूँगी. आई विल वेट फॉर दिस कैंडल टू गो अबव 10 मूविंग एवरेज. RSI MACD in my appropriate setup means RSI should be above 40. MACD should cross from bottom below to up, and the candle should be here. ठीक है. वो एक सिनेरियो होगा, बट उसमें मेरा अपसाइड लिमिटेड होगा. अपसाइड लिमिटेड होगा क्योंकि ऊपर से ये 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आ रहा है. So I will have a resistance waiting for me. So I will do this for only a few days, 1 day or 2 day. जैसे ये ल्यूपिन का ट्रेड करीब 10-12 दिन से चला आ रहा है. ये हमने 16 जून को हमने इसको आइडेंटिफाई किया था. 16 जून कौन सा तारीख था? ये वाला तारीख था. 16 जून को हमने इसको आइडेंटिफाई किया था. तब से नीचे 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 चला जा रहा है. बट अब क्या होगा कि मैं जब भी इसमें एंटर करूँगी, आई विल ओनली हैव अ वेरी लिमिटेड अपसाइड. बट अभी कोई भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आई है. 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो दैट इज़ कॉल्ड द बॉटम फिशिंग. पीपल थिंक कि एक स्पाइक सा आ जाएगा और उसके हिसाब से ये फटाफट चल देगा. लोगों को लगेगा बहुत चीप, जो स्टॉक 1500 रुपये का होता था इस समय 1000 रुपये का है, लेट्स बाय इट, राइट. बट वो ओनली फॉर बॉटम फिशिंग इज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. इट्स नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेड. It's not a long term trade. So many people have asked me Coal India. So Coal India को तो आप प्लीज़, जब तक वही बात है, इसमें भी ये काफ़ी समय से गिरता हुआ चला आ रहा है, बट जब तक कि हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो जाता है हम इसको नहीं खरीदेंगे. जब तक कैंडल्स इस 10 मूविंग एवरेज को छोड़ के ऊपर चल नहीं देती हैं, तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, राइट. इट हैज़ डन टाइम एंड अगेन कि एक दिन ऊपर जाती है कैंडल, 10 मूविंग एवरेज की जरा सा ऊपर जाने की कोशिश करती है और फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाती है.
फिर ऊपर जाती है, फिर रेजिस्टेंस लेके आ जाती है. तो आई एम गोना वेट. I will find a clear sign that the reversal is happening. Then only I will enter this trade. Otherwise, I will not. So I wanted to see one stock which somebody has asked me. It's JSW Steel. So I promise that I will definitely see. I will definitely analyze. So I'm taking up the stock and let me analyze it. So what's happening in JSW Steel? This is JSW Steel and on one day. And to me it looks pretty good. It looks very good because see ये 50 मूविंग एवरेज पे कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है, राइट? इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है और अब इसने अपना हाई को ब्रेक करा है आज. सो आई फील दिस इज गोना बी, एज इट इज मेटल सेक्टर इज बेनिफिटिंग फ्रॉम GST. So I believe this should go up. This should give you a good run up. So I'm finding JSW very good. JSW Steel very very good. ठीक है? So you can definitely have it on your radar and you can buy it or you can do whatever you want to. But मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है. Reason being कि 50 पहले तो देखो इसने यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, ठीक है? उसके बाद ये नीचे जब भी जाता है, कभी भी ये 200 मूविंग एवरेज तक नहीं जाता है, ऊपर से रिटर्न करता है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है. दैट मीन्स ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा. 195 इज सम प्राइस दैट इट प्रॉब्ली विल 190 को ये ब्रेक नहीं करेगा. दैट मीन्स योर लॉसेज आर लिमिटेड एंड योर अपसाइड इज अनलिमिटेड बिकॉज देर इज नो हिंड्रेंस. इट इज अबव ऑल द एवरेजेस. दिस इज दैट मेरा जो वीडियो नंबर 41 है विच टेल्स अस कि अगर इस तरह का, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ये अनचार्टेड टेरिटरी है, मतलब उस क्षेत्र में चला गया जहाँ पे इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? उस क्षेत्र, अज्ञात क्षेत्र में चला गया है. अब इसमें कहाँ तक ये ऊपर जाएगा कोई नहीं बता सकता, राइट? सो यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर. JSW Steel looks really really good to me. ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. जाते जाते एक बार निफ्टी को और देख लेते हैं कि क्या हुआ इसमें. आई थिंक इसमें थोड़ा और नीचे आ गई है निफ्टी एंड हो सकता है अ बिट मोर प्रॉफिट बुकिंग में कम, राइट? तो ये है, जब हमने बनाया था तब यहाँ पे थी निफ्टी और थोड़ा सा नीचे आ गई है. बट ये जो सपोर्ट खड़ा हुआ है इसके चलते इसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है? दैट इज़ वाई यू सी इट्स ऑलवेज बाउंसेस बैक फ्रॉम दिस वैल्यू विच इज़ 9622. उससे आके ये 9619 9620 पे आके बाउंस बैक कर रही है बार बार. सो लेट्स सी अगर इट हैज़ टू क्रिएट अ मोमेंटम इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन, तभी कुछ इसमें दिखाई देगा, ठीक है? सो गाइज, गुड डे, बाय बाय, एंड आई विल बी नाउ स्टार्टिंग माई वेबिनार ऑन 15th of July. Get ready, please join. I'm looking forward to see you all. And as I have told you, while working itself on the webinar, you will be able to recover whatever you have paid your fee, and rather you will get the 6-month services free for different trades that I do. All right, you will be with me in my trading room through the webinar and we'll trade together. All the best, good day, bye bye, see you tomorrow.